Mehul, Hi sir, good morning. hi Mehul. I was getting desperate to share up इतना NBDC अब बारी आएगी. So guys, so can everybody unmute and welcome Mehul Patodia, please. Welcome, Welcome Mehul. you. Hello, Welcome, everyone. welcome, sir. Thank you. Hi everyone. Welcome. Very good, Ji Mehul. So really nice, really. एक minute, आपको you will have to unmute yourself and speak. I will just put you on a spotlight for everybody. Okay, so why don't you tell us what you'll have to unmute yourself. Just a sec. Let me unmute you. कहाँ गए? अरे Yeah. Can you hear me, sir? Yes, I can hear you. Lovely, sir. So incidentally, I just want to start by saying, giving immense gratitude for a gentleman who is present here in your class, Sumit Khubchandani. He introduced me to the religion of BCI and the God Rahul Jain. So folded hand, thank you. Hi, Sumit. Good, Ji, good. So, why don't you share what is your business? What do you do? Which city are you from? And after you finished your BMP, what was your situation like in sales and marketing? BMP के बाद आपका क्या situation था? So, sir, my name is Mehul Patodia, and I run my business called Fab Cars. We are into corporate car rentals. In like layman's word, हम taxi देते हैं corporates को in a pan India level. So from the north to south, every city we're covering almost, I would say about 75 cities. We're giving them car rental services. All we have contractual business with multinational corporates. So so if you're giving a car rental or taxi service, so would it be right to say that in your business service, in your level, in your business, this is very much like a commodity product? Exactly. I mean, that's how we used to sell, right? After BMP, हमारा operations तो भले autopilot हो गया था, but sales तो हम वैसे ही कर रहे थे. मतलब I used to do sales myself. I used to go, I used to plan myself. सब meetings में ही coordinate करता था. So I just want to put this on for everybody out there, to be clear about it. So services में you were into a commodity product. Taxi supply करते थे, yes? Yes, absolutely. Very good, excellent. Guys, is taxi a commodity product? आप अगर कंपनी को टैक्सी सप्लाई कर रहे हो, कमोडिटी प्रोडक्ट है जिसमें दाम का, so Mehul, was price a factor? Absolutely. मतलब मेरी सेल्स ऐसे क्लोज होती थी, मैं जाता था, सर बताओ अगला बंदा क्या कोड दिया है, मैं कम कर देता हूँ और डील कर लेते हैं, ऐसे सेल्स करता था. So BMP के बाद how were you selling? What were the situation? What were the challenges you had? So there was, I mean, we didn't have any bifurcation of CRR, OTP, मतलब सब कर रहे थे. I was doing all the sales calls. कभी मैं ही ऑर्डर लेता था, मैं ही फिर पास ऑन करता था टीम को. So the sales part of it was a total mess. There was no clarity. There was no strategy. There was nothing. मतलब it was a total mess. And after once operations भले ही autopilot हो गए थे, but sales में कुछ नहीं achieve हो पा रहा था. जो existing था वही चल पा रहा था, growth नहीं हो रही थी. There was no growth in sales specifically. Okay, that's where you started, and you had to go out and sell? Yeah, I used to go out and sell. मैं सुबह निकलता था. I used to go meeting to meeting, close the contracts, and hand it over to my office. यही करता था मैं, और मेरा कोई काम ही नहीं होता था. Because after BMP तो operations autopilot पे हो गए थे, तो अब मैं सोचा अब तो sales ही करना है, तो मैं ही निकलता था. Okay. And किस किस्म के क्लाइंटों को बेचते थे आप? कैसे थे आपके क्लाइंट? All my clients are multinational corporates, all American MNCs, European MNCs, the largest consulting firms in the world, big banks, big insurance companies, big pharma companies, etc. ये तो बड़े-बड़े लोग हैं जिनको आप ही जाके बेच सकते हो.
हाँ मतलब वो और किसी से बात करना चाहते ही नहीं थे, मतलब बिजनेस मालिक आएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वरना देंगे ही नहीं वो। ओके सो सो दे मतलब एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, किस किस्म की कंपनियां हैं ये मल्टीनेशनल टाइप्स? So like the McKinseys of the world, the Boston Consulting of the world, जिनका annual spend on something like taxis is about 80 to 90 crores annually. तो ये लोग ओके फाइन, सो नाउ दीज आर गाइज हु विल नेवर, बिकॉज क्योंकि आप मैकेंजी के पास जाके बेचोगे तो उसको तो मालिक से ही मिलना है या बहुत सीनियर बंदे से, हाँ पर किसी और से नहीं मिलेगा वो। exactly. ओके सो व्हाई डोंट यू टेल अस व्हाट वाज योर जर्नी लाइक इन एएसपी? एएसपी कैसा था आपके साथ, वो जर्नी कैसी थी? बिकॉज अभी ये लोग सब जा रहे हैं, फोमो हो रहा है, बुरे हाल हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे, ब्ला ब्ला ब्ला। So the biggest takeaway for me was differentiating CRR को मैंने अलग कर दिया and OTP को अलग कर दिया. I have a whole different team who's just taking orders. बाकी दूसरा काम नहीं करते हैं वो. And CRR team is only doing NBD of CRR. Meaning I have assigned a CRR to every client of mine. पहले I was the only CRR एक सेकंड, which was सीआरएम existing in the. हम जो कहते हैं, हम कहते हैं अब, पहले आपके टाइम में ना सेल्स कोऑर्डिनेटर नहीं कहते होंगे शायद, सो अब वी हाँ कॉल सेल्स कोऑर्डिनेटर, जो ऑर्डर लेता है, और सीआरएम इज द पर्सन आफ्टर द ऑर्डर। हाँ तो सेल्स कोऑर्डिनेटर टीम टोटली अलग है, ऑर्डर टेकिंग टीम इज कंप्लीटली डिफरेंट. सो दे आर, इट्स हाईली मतलब डीप डिवीजन ऑफ लेबर हमने बहुत ज्यादा इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि बंदा जो ऑर्डर ले रहा है ना वो ऑर्डर ही लेता रहेगा. एंड द CRM which we call CRR, it's client retention and reorder, he is only concentrating on NBD. तो टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, हमारी NBD CRR की टीम करीबन 40 लोग की है और NBD आउटगोइंग एक है. मैं तो अभी तक NBD आउटगोइंग को मैंने छापा ही नहीं है, बिकॉज अभी तक NBD ऑफ CRR में मेरा 8x 10x हो गया है. आपके पास कितने लोग हैं एनबीडी सीआरआर टीम में? 40. जब शुरू एंड एनबीडी में, एनबीडी सीआरआर में कितने लोग थे? एक मेहुल पटोदिया. तो इसलिए मैं अपने आपको पूछा कि एक मेरा अगर बड़ा क्लाइंट है, वो बड़ा क्लाइंट बन क्यों रहा है, वाई सी माई बिगेस्ट क्लाइंट. तो उसमें ये रिजल्ट निकल के आया कि क्योंकि मैं उसको आउटगोइंग कॉल कर रहा हूँ. तो अगर मैं ऐसे ही सबको आउटगोइंग कॉल करना चालू कर दूं तो सब रॉकेट क्लाइंट हो जाएंगे. फिर मैंने हायर करना चालू किया. आई सेड हर एक CRM को मैंने 5 क्लाइंट दिए. बस इसका बढ़ना चाहिए बिजनेस, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट. उसको ताजमहल चाहिए आगरा से, आपको ताजमहल लाके देना है इसको. ऐसा एटीट्यूड उसके साथ रखना है व्हेन यू स्पीक टू दैट क्लाइंट. ओके सो व्हाई एंड डोंट यू, दिस नो वन इज डूइंग दिस इन द इंडस्ट्री. तो ये हमारा ये बहुत बहुत बड़ा यूएसपी बन गया. रात को 12 बजे गाड़ी चाहिए. तो आई एम फॉर एग्जांपल उस दिन राहुल सर ने मुझे फोन किया, आई एम स्टिल द CRR ऑफ राहुल सर. तो आधे घंटे में गाड़ी पहुंच गई. सो द CRR का काम ये है कि जब भी क्लाइंट का फोन आए, ही इज able to give whatever the client wants. Then he will obviously delegate the order taking part to the SC and the billing part to the billing team, the payment outstanding to the outstanding team. तो I'll just 40 लड़कियां अभी एनबीडी सीआरआर में सिर्फ ऑर्डर ले रही हैं और कुछ नहीं कर रही? exactly. ओके नहीं, तो 40 people are doing NBD of CRR sir. ऑर्डर टेकिंग टीम तो अलग है 40 लोग की. नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ऑर्डर टेकिंग की 40 लोगों की टीम है, एनबीडी सीआरआर की 40 लोगों की टीम है? यस ऑर्डर टेकिंग की 40 लोगों की टीम है? यस, स्प्लिट बिटवीन 3 लोकेशन, बट हाँ 40, ऑलमोस्ट 45. मिनट फिर से समझाना, मतलब ऑर्डर टेकिंग मतलब जो रेगुलर ऑर्डर ले रही है वो अलग है 40, और एनबीडी सीआरआर अलग 40? यस. एंड दिस इज द गेम चेंजर. मतलब मुझे NBD आउटगोइंग के बंदे को मिलता ही नहीं हूँ, बिकॉज वी हैव सो मच बिजनेस, सो मच पोटेंशियल. वॉलेट शेयर के पीछे हम भाग रहे हैं. जिस दिन वॉलेट शेयर 100% अचीव हो गया, उस दिन NBD CRR का काम कंप्लीट हो जाता है विद दैट क्लाइंट. एंड ही हैज टू मेंटेन दैट 100% वॉलेट शेयर. कहीं भी डिप आया मींस कुछ गड़बड़ है, MIS में दिखा देगा कि डिप हुआ है. थर्सडे हम ऑपरेशनल मीटिंग करेंगे एंड इफ नीडेड देन आई विल गो एंड मीट द क्लाइंट.
एक बार पूरा सिस्टम समझाओ कैसे होता है। I'll show you one, two, three sheet. कितने I टीम? wanted to oversimplify a sheet दिखाऊंगा. I don't know if you can see my screen, sir. नो। Now can you see? यस। तो ये हम वीक ऑन वीक हम देखते हैं बेसिकली। कैम इज की अकाउंट मैनेजर। आंसर करो पहले जरा। एएसपी से पहले आपके पास ये एनबीडी, सीआरआर, सीआरआर, ये सब लोगों, मतलब पूरी सेल्स टीम में कितने लोग थे बिफोर कुछ एएसपी? नहीं, दादा शर्मा जी थे, माय फादर वाज देयर, आई वाज देयर, माय ब्रदर वरुण। हम चार पूरी एनबीडी सीआर करते थे, सीआरआर करते थे एंड सेल्स करते थे, एनबीडी आउटगोइंग। मतलब पूरी सेल्स टीम में 4 लोग थे, वो भी फैमिली के थे, प्लस वन शर्मा जी। यस, बिकॉज शर्मा जी ऑटो पायलट के बाद फ्री हो गए तो उनको मैंने सेल्स में लगा दिया, या एनबीडी और एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ लगा दिया। ओके, वेरी नाइस। So if you see, we are monitoring one of every client week on week. Week, how many transactions happened of that particular client in 1 week. फिर अगले वीक कितना हुआ, फिर वीक 12 कितना हुआ, एंड वी नेम्ड इट। अगर वीक ऑन वीक सेम है तो हम उसको एवरेज क्लाइंट बोलते हैं। अगर वीक ऑन वीक उसका बिजनेस बढ़ रहा है तो उसको हम गुड बोलते हैं, और अगर डिप हो गया तो बैड बोलते हैं। तो वी डोंट नेम इट रॉकेट ड्रीम क्लाइंट, दैट मेक्स द एनबीडी सीआरआर रिसोर्स वेरी कंफर्टेबल कि ये तो रॉकेट क्लाइंट है, मेरे इतने रॉकेट क्लाइंट है, चलो बहुत हो गया। तो हम ये एवरेज गुड बैड वर्ड यूज करते हैं। And you see my client name, all these are multinational companies, all big venture capitalists, pharma, etc., etc. और आप टैक्सी सर्विस रन करते हो? आप जरा फ्रीज हो गए, फ्रीज फ्रीज। गाइस आपकी एनबीडी सीआरआर और, हाँ अब योर, आप एक मिनट रुको, म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। कैन यू स्पीक नाउ मेहुल? आप म्यूट पे Yeah, हो। I I can hear you. I don't feel नाउ like I'm on mute. नाउ वी कैन हियर यू। Okay, sorry. So I'll go back to this sheet. So again, these are the few cams which I have put on this sheet, where you can see कि वो कितनी transactions ला रहा है week on week. कुछ भी dip होता है, we meet and say why the dip is there in that particular client. मतलब इतना level of detailing और focus कभी भी नहीं था, and इससे मतलब gold and gold ही निकल के आ रहा है। We have weekly client wise data. We have each client मतलब कितना रेवेन्यू, कितना इंक्रीज ले रहा है वीक ऑन वीक। सो दिस इज अ परसेंटेज इंक्रीज एवरी वीक। ये वीकली 33%। इंक्रीज है? हाँ, एक्चुअल नंबर, दीज आर लाइक लाइव नंबर्स। मई 33, महीना खत्म नहीं हुआ है अभी। 33, 42 वीक 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 100%। वीक ऑन वीक, मतलब वो नया क्लाइंट है, चलो दैट इज ओके, बट ये है। एंड वी हैव सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग ऑल द एमआईएस। सो गुड कितने गुड थे, कितने बैड थे, कितने जीरो है। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमारे 40 साल का हमने डेटा निकाला, मतलब एनबीडी तो छोड़ो, 40 इयर्स का डेटा निकाला। सबको वही भी स्टार्टेड, सबको सॉरी बोला, मैंने पिच रिकॉर्ड किया, सेल्स वालों को दिया, उन्होंने सेम सॉरी पिच सबको चालू किया, एंड दैट्स हाउ द बिजनेस गॉट स्टार्टेड। हम्म। And this is a month data. So this is the kind of MISs we are following. तो ये सब आपने एएसपी एएसपी में कर लिया? Yes, this is only ASP, sir. This is only ASP. वेरी नाइस। My only pitch here is that NBD or CRR is the most powerful, and it is just, matlab, it has changed my game. And today I am not meeting a single client, not a single client, not even BCG, who's giving me 30 crores of annual revenue. It's like a dream client for even the biggest car rental company in the world. And I've stopped meet. Last sharing तक मैं BCG से भी मिल रहा था. That also I have stopped. मतलब अब Unless आप there is मिलते massive नहीं issue. हो? एकदम ही नहीं. My sale NBD CRR ही कर रहा है. And now he only wants to talk to NBD CRR. वो मेरे से बात नहीं करना चाहता है. और ये बोलता है कि एनबीडी you are useless.
एनबीडी सीआरआर में किसको बैठा रखा है? ये कोई बहुत टॉप एंड सेल्स के लोग हैं? नहीं नहीं सर, 20,000, 25,000, 30,000। कोई ड्राइवर का बच्चा जो 10th पास है, कोई ऑफिस क्लीनर का बच्चा है। तो दिस इज द लेवल। तो उसको ये बोलना कुछ नहीं है सर कि और हाउ हाउ आर यू सर, सब ठीक है, लास्ट वीक इतनी बुकिंग थी, आज सर ये हफ्ते कितनी दे दोगे, थोड़ा प्लीज बढ़ा दो सर, मेरा टारगेट तो नहीं बोलता बट व्हाटएवर द पिच इज। तो ये लड़कियां हैं जो फोन कर करके सीनियर सीनियर कॉर्पोरेट लोगों से ऑर्डर उठा रही हैं? हाँ सर, वी हैव मोस्टली मेल्स बिकॉज दैट्स हाउ द इंडस्ट्री इज, और कभी ड्राइवर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो इट इज मेल स्टाफ, बट दैट डजंट मैटर। ओके। तो जो ऑर्डर टेकिंग वाला स्टाफ है वो भी मेल हाँ, है? वो भी मेल है सर। ओके। मेरी सिर्फ बिलिंग स्टाफ जो है, बिलिंग एंड आउटस्टैंडिंग पेमेंट फॉलोअप, दैट इज ऑल फीमेल। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। और मैंने द बिगेस्ट थिंग वी डिड वाज कि जो बंदा एनटीटी सीआरआर कर रहा है ना, वो पेमेंट फॉलोअप नहीं करता। बिकॉज अगर वो पेमेंट फॉलोअप करेगा तो उसको उसका फोन उठाना बंद कर देगा क्लाइंट। ये तो पेमेंट मांगने वाला, चलो उसका फोन ही नहीं उठाते हैं। तो आपका एनबीडी सीआरआर का स्टाफ सिर्फ ऑर्डर ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा? कुछ नहीं सर, कुछ उसको ये बोला हुआ है कि पेरिस से आईफिल टावर क्लाइंट को चाहिए, तो भाई उसको बता देना कि आ रहा है ऑन द वे है, और दे देना कुछ ना कुछ। अच्छा, मतलब उसको क्लाइंट को ताजमहल चाहिए, ताजमहल दे दे भाई, मगर दे दे। हाँ हाँ, मतलब दैट्स द एटीट्यूड यू हैव टू कम अक्रॉस इन सच अ वे। बिकॉज मैंने जो शुरुआत में एक्टिविटी की थी ना, क्लाइंट को फोन करके कि आप हमसे क्यों खरीदते हो, हमको क्लाइंट को नहीं बताना है कि आप हमारे हमारे से इस ये कारण से आप सर्विस लो या प्रोडक्ट लो। उसको हमें पूछना है 10 क्लाइंट को फोन करके कि आप सर हमारे से क्यों खरीदो, बता दो। तो हमने डेटा कोलेक्ट किया, उसी के ऊपर हमने पिच बनाया, एंड देन वी क्रिएट दैट फोमो स्पिन सेलिंग करते हैं उसके ऊपर कि हाउ वुड इट बी इफ द ड्राइवर वाज ड्रेस्ड और ग्रूम्ड वेल एंड न्यू ऑल द रोड्स। तो वी क्रिएट दैट फोमो फैक्टर, एंड उससे बहुत कुछ निकल के आ रहा है सर। तो आपने उस स्पिन सेलिंग का कोर्स किया था? हाँ हाँ, स्पिन सेलिंग तो वही काम आती है। उससे क्या फायदा हुआ? जो एक एक दो दो हफ्ते की मीटिंग होती थी क्लोज करने में, वो एक मीटिंग में क्लोज हो जा रहा है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम फैबका से अगर गाड़ी नहीं लेंगे तो बॉस उनकी जॉब चली जाएगी। कैसे? मतलब ऐसी पिच बना दी है? ऐसी पिच बनाया। इट्स अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल पिच, और मतलब वी आर ओनली आस्किंग क्वेश्चंस। हम क्लाइंट को कोई फीचर्स डंप नहीं करते हैं। क्लाइंट को फीचर्स डंप करना हमने एकदम बंद कर दिया है। पहले क्या करते थे? हम पहले तो ये करते थे सर, हम आप जो बोलो हम कर देंगे, ये फीचर है कि हम गाड़ी आपको यहाँ दे सकते हैं, वहां दे सकते हैं, ऐसा ड्राइवर आएगा, वैसा ड्राइवर आएगा, आपके सीईओ को अच्छे से संभालेंगे। ये सब हमने, दिस वाज लाइक बेगिंग, हमने बेगिंग बोल लेना करना बंद कर दिया है। बेगिंग मतलब क्या होता? कि हम क्लाइंट को भीख मांगते थे, सर धंधा दे दो, धंधा दे दो, हम ये कर सकते हैं, फीचर डम करते थे, वी टू प्राइस वॉर में चले जाते थे। एंड द बिगेस्ट थिंग इज दैट वी हैव स्टॉप्ड, वी स्टार्टेड टू से नो। लास्ट वीक आई लेट गो ऑफ अ 12-year-old client, Development Bank of Singapore, whose annual revenue with me was about 6 crores. He wanted a drastic reduction in price. And it's been 3 weeks, and my NBD CRR person is in touch with all the bookers of that company. They are massively struggling, and they're going to come back to me in the next 1 month. नहीं, क्या मतलब आपने 6 करोड़ का जो क्लाइंट था उसको छोड़ दिया? मैंने मना कर दिया सर, नहीं कर सकते फॉर द क्यों? फर्स्ट टाइम। Because he wanted a reduction in price. He was comparing me with other vendors. तो आपकी प्राइसेस अब बाकी सब वेंडर से हायर हैं? 40%। क्या क्या क्या? 40%। आप टैक्सी 40% हायर प्राइस पे? यस सर, BMW, जो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बेचता हूँ 15,000 में, 8 घंटा 80 किलोमीटर में। सेम BMW, सेम मैन्युफैक्चरर, सेम ईयर ऑफ एवरीथिंग इज being sold at 10,000 rupees, 11,000 rupees, 8,500 rupees. So I'm not selling them the car. It's not the car. It is the convenience I'm offering to them. It is the convenience of the NVD CRR person. It is the convenience of the CRR person because of which he's buying from me, not because of the car. वाह,
वाला ला ला वाला वाला वाला। हाँ जी, वो कमोडिटी वाले कहाँ रह गए? जिंदा है? मैं हाथ जोड़ के ये विनती है सर आप, और इसमें आई एम द लेजिएस्ट पर्सन, मतलब मुझे काम नहीं करना होता। एनबी सीआरआर प्लीज कर लीजिए, एंड आई यू रॉकेट, मतलब रियल रॉकेट्स विल कम आउट। आपने 80 लोगों की सेल्स टीम, 80 सेल्स कोऑर्डिनेटर बिठा नहीं, दिए? 40 is in OTP sir, in as sales coordinator, 40 is order taking and 40 is CRM। अरे 40 तो ऑर्डर टेकिंग, मतलब 40 इज पीपल हु आर डूइंग ऑर्डर टेकिंग रेगुलरली। हाँ, ऑर्डर लॉ, बिकॉज हमारा ट्रांजैक्शन वाइज भी ना थोड़ा सा मे बी दैट फिगर इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव of how good that is, but it is just that हमारे we are getting almost 3,000 emails a day, so I need so many people। और पहले 4 थे लोग टोटल, 4 भी क्या, 3 तो फैमिली से थे और एक एक एम्प्लॉय था। हाँ, ऑर्डर टेकिंग में 5-6 थे टोटल, और सीआरआर में मतलब 4 लोग थे बिफोर एएसपी। बिफोर एएसपी। तो इतना स्टाफ बढ़ा के कि फिर अभी प्रॉफिट्स कितने बढ़े हैं इसके बाद? प्रॉफिट तो आई थिंक एटलीस्ट आई टोल्ड यू वी डिड एक बार 4x हो गया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब इस बार दिस ईयर प्लानिंग टू कंसंट्रेट ऑन एनबीडी आउटगोइंग। एनबीडी आउटगोइंग तो अभी देखा ही नहीं है। मैं बस सेल्स वाले को पूछता हूँ तो मीटिंग कितनी की बस, और मैं बाकी कुछ सवाल नहीं पूछ रहा उसको अभी। तो ही आपने इज एन ईगल, सो एनीवे। तो नहीं, एक मिनट, एएसपी खत्म करने के बाद जो अगले साल आपने किया वो कितना ग्रो फोर कर? एक्स 4x प्रॉफिट इन द बैंक, बिकॉज ऑल्सो द साइंस ऑफ फॉलो अप फॉर आउटस्टैंडिंग पेमेंट इज अमेजिंग। तो वो भी पहले तो क्या मतलब पेमेंट रहते ही नहीं थे बैंक में, सब कुछ क्लाइंट चैरिटी चल रही थी। दैट इज कंप्लीटली चेंज। We नहीं, have bought about 200 cars sir in the last 1 year. Today we have enough cash reserves to pay off all the loans on day one, or maybe on today। तो आपने इतना कैश रिजर्व बना लिया कि 200 गाड़ियों हाँ, का पेमेंट आप आज कर सकते हो? अगर कोविड फिर से आ गया, सब कुछ बंद हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, मैं बैंक का तो पैसा लौटा दूंगा। वेरी नाइस। और 200 गाड़ियां खरीदी? आपके आपकी पूरी इंडस्ट्री में गाड़ियां खरीद रहे थे लोग? कोविड में सब बेच रहे थे। I was आप lucky I had the business for आपने कोविड में 200 गाड़ियां खरीदी? कोविड में लास्ट अबाउट 24 months। मतलब कब से कब तक? 2020 एंड से चालू किए, एंड वी द लास्ट कार वी बॉट वाज आई थिंक जैन ऑफ 23। नहीं, तो 2020 में आपने गाड़ियां खरीदनी शुरू की जब कोविड वाज एट। वीक और उस समय आपकी इंडस्ट्री में क्या कर रहे थे लोग? सब बेच के कोई मतलब धंधा ही बंद करके गांव चले गए, या पीपल शट डाउन बिजनेसेस। इट वाज मेहम। बट माय सीआरआर गाय वाज स्टैंडिंग अंडर द क्लाइंट्स ऑफिस कि सर आपको चाहिए गाड़ी, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं गाड़ी दूंगा आपको। तो आपने वो जो कोविड में 200 गाड़ियां खरीद ली? और मैं घर से निकला नहीं एक बार भी। उस टाइम तो हम ऑटो पायलट चल रहा था, तो वी डिडंट हैव टू गेट आउट ऑफ द घर से मैं निकला ही नहीं। वेरी नाइस। तो अब आप क्या करते हो, क्योंकि आप क्लाइंट से तो मिल नहीं रहे? अच्छा, सेल्स आपका ऑटो पायलट पे चला क्या पूरा? Totally autopilot. So NVIDIA of Sierra is fully on autopilot. NVIDIA outgoing is fully on autopilot. पर NVIDIA outgoing पे हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं अभी। उस पे मैं फोकस अभी ये साल मेरा फोकस उस पे होने वाला है ताकि आई गेट द नेक्स्ट 4x। तो तो आपने सही बताया, गोल्डन सर्कल 4x, NVIDIA outgoing is 4x, and the first 4x and the easiest 4x is NVIDIA of CRR। तो आप कह रहे हो सबसे पहला फोकस आपका रहा कि एनबीडी सीआरआर में आपने 4x कर लिया। यस अब आप एनबीडी आउटगोइंग पे 4x करोगे, यस। और एनबीडी और गोल्डन सर्कल पे आपने ऑलरेडी काम किया हुआ। गोल्डन सर्कल भी चल रहा है, गोल्डन सर्कल और NVIDIA आउटगोइंग एक साथ करेंगे सर। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब आप क्या करते हो, क्योंकि आप तो फ्री हो गए? पहले तो सेल्स, पहले आप ऑपरेशंस करते थे, ऑपरेशन से फ्री हो गए, फिर सेल्स करते थे, सेल्स से फ्री। पहले आपको सेल्स में कितने हफ्ते में कितने दिन लगना पड़ता था? तेल में तो हर रोज लगते थे। एवरी डे आई शुड डू मीटिंग्स। कोई मतलब सीआरआर था नहीं, तो कहीं गाड़ी की इश्यू हुई, वो क्लाइंट धंधा बंद कर दिया, हमें पता ही नहीं चल रहा है। ये क्लाइंट तो धंधा ही बंद कर दिया, 3 साल हो गए। तो वही सब डेटा निकाल के आफ्टर एएसपी सबको सॉरी कहा, फोन किया। फर्स्ट आई डिड इट ऑब्वियसली, एंड देन
recorded the pitches, gave it to my sales guys. उन्होंने लगाया, उन्होंने अपना पिच रिकॉर्ड किया, मैंने सुना, तो काफी इटरेशंस थे, बट अब थोड़ा अब वो सिस्टम बन गया है। तो आपने पिच पे कितना काम किया? तो पिच पे मैं खुद कॉल्स करके रिकॉर्ड करता था, एंड देन आई यूज्ड टू गिव इट टू माय सीआरएम या सीआरआर जैसे बोलना है। तो आपने पिच खुद सारी की सारी रिकॉर्ड करी है? यस यस यस, माय एक्चुअल कॉल्स। क्लाइंट को जो सॉरी बोलता था, सेल्स गाइस यूज्ड टू वंडर कि एक हम सॉरी कैसे बोले क्लाइंट को, तो मैं रिकॉर्ड किया ना, गिव इट टू देम। दिस वाज अबाउट 2 इयर्स बैक, जब एएसपी जस्ट खत्म हुआ था। और अपार्ट फ्रॉम सॉरी कॉल्स, फिर अब जो एनबीडी सीआरआर की सारी कॉल्स है वो भी आपने खुद ही बनाई है? हाँ, वो भी मैंने खुद बनाई। सो उनका सब मैनेजमेंट में एक्शन ये है कि दे हैव टू टॉक टू एवरी क्लाइंट ऑन अ वीकली बेसिस। टच करना है नहीं, हाँ, या तो व्हाट्सएप के थ्रू टच करे, या तो जाके मिल ले, या तो जूम जूम करे। तो क्लाइंट को हम हर हफ्ते टच करना है, फिजिकली टच करना है एक बार। और पहले आप जाके मिलते थे, वो पहले फील्ड पे काम करते थे, अब फील्ड पे काम करते हो? जमाना ही हो गया सर। नहीं नहीं, आई मतलब डोंट रिमेम्बर गोइंग ऑन पहले द फील्ड। पहले हर क्लाइंट मीटिंग क्लाइंट के ऑफिस में होती थी? यस, एवरी क्लाइंट मीटिंग every each and every client meeting. was in the client's office? Absolutely. And Today 90% is on Zoom. तो अब आप पूरे के पूरे सेल्स एंड ऑफिस जॉब पे आ गए? Absolutely. सर मैकेंजी के साथ जिनका आरएफपी चल रहा है अभी, उनके साथ सॉरी मैंने जूम किया है, and their annual spend on taxis is about 60 to 70 crores. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी And the नाइस। best part सर, एनबीडी सीआर से होता क्या है ना, आपकी सेल्स बढ़ जाती है, और जब स्केल करते हो ना आप, तो कहीं ऑपरेशन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है ना, पता लग जाता है कि ऑटो पायलट तो कर लिया है, बट यहाँ पे इशू है, तो वो हम फोकस करके उसको सॉल्व कर देते हैं। बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू अचीव 100% ऑटोमेशन, कहीं ना कहीं गैप रह जाता है 5-10% का। 80-20 अप्लाई करके बैठे हुए हैं। तो व्हेन वी आर स्केलिंग, वी फिगर आउट कि ये अच्छा, ये स्केल करने से ये प्रॉब्लम आ रही है, चलो इस पे फोकस करके इसको रिजॉल्व करते हैं। और आप ये कह रहे हो कि आपका बिजनेस जेन्युइनली कमोडिटी है कि नहीं है? क्योंकि इज इट सेम एज स्टील ट्रेडिंग एंड ज्वेलरी एंड ऑल ऑफ दिस? मतलब Jewelry कमोडिटी? is not at all. Jewelry तो is not yeah, steel trading, yes, absolutely. नहीं, मैं It's कह a रहा हूँ price game. आपका But प्राइस गेम है क्या? नहीं नहीं नहीं, absolutely नहीं। पहले 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 तो प्राइस ही था। पहले तो और कोई पिच ही नहीं होती थी। द पिच वाज की, सर आपको क्या कोट मिला हुआ है, हम कर देते, हम कम कर देते हैं, प्लीज हमारे को साइन कर लो। दिस वाज द पिच। वी नेवर यूज्ड टू लुक एट प्रॉफिटेबिलिटी, क्या मार्जिन है, क्या जीपी है, कुछ नहीं पता था। अच्छा, ये मेरे को टॉप ना, लाइन के पीछे भाग रहे थे। ये मेरे को हजम नहीं हुई कि गाड़ी के लिए जो बीएमडब्ल्यू है या नॉर्मल गाड़ी, आप किस किस्म की गाड़ियां देते हो? We give everything now. 70% of our business comes from standard cars like sedans, like Desire, Accent, Honda City, Ciaz. तो आप ये Bla- डिजायर टाइप गाड़ियां दे रहे हो लोगों को और 40% ज्यादा पैसे ले रहे हो? Yes, absolutely. ये क्या बात कर रहे हो? मारुति की गाड़ियां बेच दे रहे हो और टैक्सी पे और 40% एक्स्ट्रा ले रहे हो? So because I figured out कि मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, वो क्लाइंट ने मुझे बताया। मुझे आई वाज नॉट डंपिंग ऑन द क्लाइंट कि ये मैं कर सकता हूँ गाड़ी के साथ, ये कर सकता हूँ। इट वाज द क्लाइंट हु टोल्ड मी कि भाई तेरी वैल्यू प्रोपोजिशन ये है, तू ये बताया कर। तो क्लाइंट एजुकेटेड अस, तभी मेरी पिच बनी। उस पे आपने स्पिन सेलिंग लगा दी? फिर वो उसको जो मुझे बताया उस पर मैंने स्पिन सेलिंग लगा दी। और ये सब आपने एएसपी में किया? इसमें सर एशियन पेंट्स करके कंपनी है, आई एम श्योर एवरीवन हर्ड ऑफ इट। दे हैव ऑलमोस्ट 23 कार रेंटल वेंडर्स। मेरा रेट सबसे हाईएस्ट है उसमें, एंड आई स्टिल गेट अबाउट 30% of their wallet share, which is quite a lot amongst 23 players. Amongst 23 players 30% शेयर आपका है और आप 40% एक्स्ट्रा गाड़ी, 40% एक्स्ट्रा पे गाड़ी में। एशियन पेंट्स में मे बी 25-30% ज्यादा रेट है, नॉट 40, बट रिगार्डलेस। और उसको आप मारुति डिजायर दे रहे हो? हाँ, डिजायर, क्रिस्टा, व्हाटएवर, ऑल्टिस। वेरी नाइस, वेरी ओके। तो अब आप क्या करते हो, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही टाइम है, अब क्या है नहीं है? टाइम ही टाइम है सर। तो माय ड्रीम वाज टू स्टार्ट समथिंग इन लंदन, तो वो चल पड़ा है। सो आई हैव स्टार्टेड द सेम कंपनी इन लंदन, एंड बिजनेस भी चालू हो गया है, स्पेंडिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम देयर।
उसको लॉन्च कर रहे हैं, दुबई में चालू कर लिया है। तो आपने अब 7.5 fleet of का। आपने लंदन में टैक्सी सर्विस चालू कर दी और दुबई में टैक्सी सर्विस चालू कर दी। हाँ एग्जैक्ट, एंड बेस्ट पार्ट ये कुछ नया तो करना नहीं था, जो यहाँ पे किया वही वहां छापना है। साइंस इज द सेम एवरीवेयर। अरे मगर तो लंदन सुपर में चल, टैक्सी सर्विस कैसे संभाल रहे हो इंडिया से? तो सब बंदे इंडिया में बैठ, सब इंडिया से ऑपरेट हो रहा नहीं तो लंदन की टैक्सी सर्विस, लंदन में आप इंडिया से काम कर रहे हो या वहीं है। पर? हाँ हाँ, नहीं वहां पे तो वर्चुअल ऑफिस है, बिकॉज आई वांटेड माय ओवरहेड्स टू बी जीरो। तो वहां पे मेरी ओवरहेड जो मंथली ओवरहेड है इज अंडर 500 पाउंड, व्हिच इज व्हाट 50,000 रुपीज। मेरी टीम जो है कलकत्ता बैठी है, आप यूके का नंबर लेके सब कुछ। आप कह रहे हो आपका लंदन ऑपरेशंस 500 पाउंड में चलता है? हाँ, प्लस स्टाफ कॉस्ट विच इज इन इंडिया। तो पाउंड में कमाएंगे और रुपीज में सैलरी है, आई थिंक वहीं पे गेम है। और लंदन में आप एक्सेप्टेड हो क्या? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लंदन में मतलब बिकॉज अ लॉट ऑफ माय एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैव ऑफिसेज इन लंदन, तो मेरे लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स था, जैसे BCG, McKinsey, all these venture capital firms, private equity firms, all of them have offices in London. So it is very very easy for me to pitch to them कि देखो आपको इंडिया में भी दे रहे हैं, आप लंदन में भी ले लो। यही पिच है अभी तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, excellent. What else? What would you like to advise all of these people in ASP? What would you like to talk to them? Guys, do you have a question? So three things which we really जो हमने three statements of Rahul sir we have chapod and given us, and it has given us all the success. One is deep division of labor. Second is management by action. And third is whatever you focus on will expand. So I started focusing on NBD CRR, it started to expand. I started to do deep division of labor, meaning एक CRR को मैं 5 client दे रहा हूँ. He was able to succeed there. And management my action. I never tell my sales guys कि मुझे ये result चाहिए, ये target है, कुछ नहीं. Activity क्या कर रहे हैं, what are the actions we are taking, we are only doing MIS on that. And अपने आप numbers निकल के आ जाएंगे. तो डीप डिवीजन ऑफ लेबर मतलब अभी फॉर एग्जांपल अभी आपने कितने सेल्स को आप सीआरएम बोल रहे हो, मगर कितने जो ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर जो एनबीडी कर रहे हैं या कोऑर्डिनेटर है, आपने एक क्लाइंट पे कितने सेल्स कोऑर्डिनेटर लगाए हुए हैं, या कितने क्लाइंट को आप एक सेल्स कोऑर्डिनेटर को कितने क्लाइंट देते हो? OTP वाले को जो सेल्स कोऑर्डिनेटर है, इज मैनेजिंग नॉट मोर देन 3 क्लाइंट्स, 1 पर्सन। एक बंदा 3 क्लाइंट संभालता है बस? बस आपके if पास the client is a decent size, अगर क्लाइंट छोटा साइज का है तो हम मे बी 5-6 मैक्सिमम 8 या 9 देते हैं, उससे ज्यादा देते नहीं है। आपके पास टोटल कितने क्लाइंट हैं? मोर देन अबाउट 236 या 237 है सर। तो करीब 200-250 क्लाइंट हैं आपके पास, और हर सीआरएम को आप 3 या 5 क्लाइंट देते हैं? हाँ मैक्सिमम। तो दिस इज डीप डिवीजन ऑफ लेबर है। डीप डिवीजन ऑफ लेबर इज अ नो ब्रेनर, मतलब इसी से सारा कुछ निकल के आता है। We've kept one lead generation person, one lead gen person who works with the NBD outgoing. वो लीड निकाल के देता है, मीटिंग भी वो, ही इज प्लेइंग अ डुअल रोल, वो मीटिंग भी सेट करके मेरे NBD outgoing को देता है। NBD outgoing is doing about 50 meetings a week. Okay. My conversion ratio is a bit low because of my prices, which is okay. So meetings बढ़ा दिए हैं, तो it's as per se sales is a number game. The conversion ratio is low, you increase the number of meetings. Very nice. Very nice. Very nice. My Very nice. conversion ratio is about 5 to 7%. So we are doing that many meetings. Good. Excellent. So guys, any questions? Anything? How was the journey during ASP? ASP के दौरान आपकी, एक मिनट, ऋषभ, what was your question? मेहुल भाई, absolutely inspiring sharing. बहुत ही एनर्जी दे दी आपने. Thank you so much. Just a question here. All of us are going through ASP right now, और हमें होमवर्क में टाइम मिलता है, हम होटल चेक इन करते हैं, फिर हमें किक लगती है, फिर हमें लगता है बहुत बाकी है. So what was the journey when you were going through your ASP batch? आपका ये मेजर जो आपने बताया, ये ASP के ड्यूरिंग में हुआ या आफ्टर ASP हुआ, होटल चेक इन में हुआ? So what I did was, मेरे से मल्टीटास्किंग होती नहीं है, तो मुझे एक चीज कुछ समझ में आती थी, सर की बात, मैं उसके पीछे लग जाता था. जैसे NBD CRR was the, again sorry to be repetitive, but it was an
आई ओपनिंग थिंग फॉर मी। तो मैं उसी के पीछे लग गया और अभी भी उसी के पीछे पीछे हूँ अबाउट द लास्ट 2 years। तो मैं एक चीज लेता था, अब फॉर एग्जाम्पल सेल्स इंजन वगैरह सब मैंने नोटिंग कर ली, बट उस पर मैं भी इतना काम नहीं किया, उस पर इतना फोकस नहीं किया। यू कैन नॉट वर्क ऑन मोर देन वन थिंग एट अ टाइम। द मोमेंट यू डू दैट, आपका कहीं पे भी रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। एटलीस्ट दैट्स विद मी। Okay. So let's say, I don't know what your business is. अगर आपका business is, I don't know, let's say steel trading. Software. Software. So you're selling as a service. Yes, we are a SaaS based company. So NBD CRR. Have you got the, once you know कि आपको wallet share मिल गया है, then you can relax. But wallet share जब तक पूरा नहीं मिलता 100%, तो CRR हर हफ्ते चलता रहेगा, भागते रहेगा. Okay. Coming back to the question, so आपका implementation class के बाद कितना हुआ और class के दौरान कितना हुआ? NBD CRR started during the ASP. Okay. But we were able to ace it while it was ending ASP, and जब ASP खत्म हो गया उसके बाद in the next 6 to 8 months we were able to really ace it. मतलब go all out in that. We were able to implement क्योंकि result निकलने लगे, तो I had the confidence to increase the number of NBD CRR resources. पहले हम डर के रख रहे थे, but इतना result निकल के आया कि then we went all out. My plan is to have one CRM behind one client. Oh my God. Well, that's amazing. Thank you so much for sharing so nicely. Really inspired. आपने तो कुछ ऐसे भी क्लाइंट है जिनके पीछे 2 CRM लगा रखे हैं शायद। हाँ, एग्जैक्ट, दैट इज BCG। एक दिल्ली में है, एक चेन्नई में है, एक बॉम्बे में है, 3 हो गई अब। मतलब एक क्लाइंट के पीछे कितनी CRM है? या सेल्स कोऑर्डिनेटर? एक क्लाइंट के पीछे 3 सेल्स कोऑर्डिनेटर? नहीं, सेल्स कोऑर्डिनेटर तो अलग है, वो तो OTP के लिए 3 अलग है, देन NBD ऑफ CRR के लिए 3 है। नहीं, आप कह रहे हो एक क्लाइंट के पीछे 6 लोग हैं? 6 लोग हैं एक क्लाइंट? सर इट्स लेस। क्लाइंट बोलता और लगाओ और धरना दूंगा। नहीं, आप कह रहे हो एक क्लाइंट के पीछे 6 लड़कियां लगी हुई हैं? यस। 3 लगी हुई है CRR OTP की, 3 लगी हुई है NBD CRR की। 3 लगी है बिलिंग के लिए। नहीं तो 3 लगी है बिलिंग, टोटल फिर टोटल 6 है ना? नहीं 9 है सर, मतलब मैं पूरी गिना 9 बिहाइंड। सो दिस इज नॉट विद एवरी क्लाइंट, दिस इज बिहाइंड मे बी 10 क्लाइंट्स। तो 10 माय रॉकेट ड्रीम क्लाइंट। तो 10 क्लाइंट ऐसे हैं जो रॉकेट क्लाइंट है, उसके पीछे एक बंदे के पीछे 9 लड़कियां हैं। यस। 3 लड़कियां हैं बिलिंग की, या 3 OTP, 3 लड़कियां हैं जो OTP कर रही हैं और 3 लड़कियां NBD CRR कर रही हैं। यस। And they do nothing extra. सिर्फ ये एक ही काम पे उनका फोकस होता है। एग्जैक्ट, और टाइम ही नहीं है। और can I ask you one question? And I don't want them to do anything else because वो ये ना, एक आदमी अगर चौके में आलू काट रहा है, दिन भर आलू ही काटेगा, दूसरा काम ही नहीं करेगा वो। क्यों? Whatever you focus on expand, जो काम वो एक काम करेगा उसी एक्सपैंड करेगा, उसी से रिजल्ट निकल के आएंगे। दूसरा काम करते ही गलतियां चालू हो जाती है। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, मेहुल भाई, हाउ इज योर लाइफ राइट नाउ? अभी मेरे को बताइए, अगर इतना सब अमेजिंग चल रहा है, सो व्हाट डू यू रियली स्पेंड योर 24 hours at? June 7th I'm leaving for 2 months, starting with Paris, then Switzerland, then London, then back, then going for Wimbledon. I'm manifesting for my son. He wants to become a tennis pro, so I take him to Wimbledon. We manifest there and come back. ये कर रहे हैं। नहीं, and you also spend some time in Spain with your son? Yeah, he's going for 1 month now to Spain, so I'm going to drop him. And तो you regularly, तो मतलब आप क्या 1 महीने 2 महीने के लिए ट्रैवल करने जा रहे हो छुट्टी पे? 2 महीने जा रहा हूँ, summer, every summer since ASP, since last year I started. Last year I started. This will be the 2nd year I'm doing, and then again in Christmas I'll go for 15 days. Then after I come back from with my family, I'll take my mom. ये कमाल कर रहे हो यार, ये तो थोड़ा ज्यादा। ये ASP के बाद हुआ, BMP के बाद नहीं हुआ ये सर ASP के बाद हुआ सर, बिकॉज BMP में क्या ना, लाइफ सुधर गई और ASP के बाद बैंक बैलेंस सुधर गया। Very nice, so well put, so well put. I want to ask one question. Can I ask? Yeah. Just right now you told us that you are able to sell like the car for 15,000 instead of 10,000. What is your USP and
what is the pitch you are using for that? एक तो for example, I work with companies with a contract. पहले मैं एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूं इस पे, सुनो, समझ लो. तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इसकी पिच देखूं. No, sir. We want to just know how strategy is using, like for USP. How the customer is able to manage to give this much amount extra. अरे सुन लो, सब ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बताओ कि तुम्हारा पीएमएस क्या है. पीएमएस तुम्हारा दिखा के मुझे मेल कर दो तुम्हारा पीएमएस, ताकि तुम्हारा पीएमएस लेके मैं अपना पीएमएस बना लूं. तुम्हारा एफएमएस लेके मैं अपना एफएमएस बना लूं. पहली बात तो इसके एफएमएस पे तुम्हारा एफएमएस नहीं बनेगा. और ये जो पिच कर रहा है वो इसने बनाई है और इसने मेहनत की है. पिच बनाने में कितना टाइम लगा मेहुल? तो लगा हफ्ता, एटलीस्ट 10 days तो लगे. 10 दिन मतलब घुस के मतलब I was making continuous calls to client. वो सॉरी वाला जब वो चक्कर चला था ना, सब क्लाइंट को फोन करके सॉरी बोल रहा था मैं. एंड मुझे तो शर्म है नहीं, मैं तो किसी को फोन उठा के सॉरी बोल दूं. तो उससे बहुत कुछ निकल के आ रहा था. तो एवरी कॉल आई वाज रिकॉर्डिंग एंड आई मेड अ पिच आउट ऑफ दैट. सो आपने वहां से डेटा लिया और उसके बाद फिर नॉर्मल बनाया. बट एनीवे, व्हाई डोंट यू आंसर राहुल्स क्वेश्चन? हाँ जी. तो द पिच इज बेसिकली, मैं ये बोलता हूँ कि सर आप हमसे गाड़ी लोगे ना सर, आई डोंट टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द कार और फीचर्स ऑफ द ड्राइवर. आई टेल हिम कि आपका जो स्टेक होल्डर है ना सर, वो खुश रहेगा. बिकॉज जो मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, ड्राइवर दे रहा हूँ, ही इज गोइंग टू बी अ कस्टमाइज्ड ड्राइवर फॉर योर स्टेक होल्डर. He's going to be like his errand man, not only drive for him, but hold his office bag for him, or, you know, basically we dedicate a chauffeur, we customize a chauffeur. Like Starbucks में आप जाते हो ना, ये बोलते हैं कि ये कॉफी रही ऋषभ की है, ये कॉफी रही मेहुल की, तो आपको लगता है कि वो कॉफी स्पेशली आपके बनाई है. So I do the same thing. I tell the client, sir, ये गाड़ी आपके लिए खरीदी और कहीं मैं देता नहीं हूँ गाड़ियाँ. So I create a lot of FOMO for him. एंड उसको क्या जो ऑर्डर दे रहा है उसको फायदा क्या होता है इससे? his or her life is in peace. उसको कंप्लेन नहीं आती. तो उसको ये लगता है यार, बिकॉज कार रेंटल फ्रॉम द क्लाइंट साइड जो बंदा मैनेज कर रहा है ना, उसके लिए इट्स अ नाइटमेयर जॉब ऑलवेज. कुछ ड्राइवर का इशू आता है, ड्राइवर पान खा रहा है, टाइम पे नहीं पहुंचा, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि सर आपको एक फोन नहीं आएगा, आप मेरे पे छोड़ दो. तो आई डेवलप मैसिव अमाउंट्स ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी. जब ये होता है ना, then the client is willing to do or give you whatever price you want. तो आप आपने ना ठीक से, so let me just reverbalize this. गाड़ी जो है ना, वो गाड़ी इस्तेमाल होने वाली है कंपनी के सीईओ को. जो कंपनी का हेड है ना, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, ये वाले लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं. और जो गाड़ी को ऑर्गेनाइज करता है ना कंपनी के अंदर, वो एक एडमिन डिपार्टमेंट होता है. Yes. एडमिन डिपार्टमेंट गाड़ी ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने बॉस के बाप के लिए. एडमिन डिपार्टमेंट गाड़ी ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने बॉस के बाप के लिए. अगर उसका बॉस का बाप खुश नहीं है ना गाड़ी से, तो जिस बंदे ने गाड़ी दी है उसके हैप्पी बर्थडे हो जाते हैं. तो अब उसका जो पेन पॉइंट है वो क्या है कि मेरे बॉस का बाप खुश रहे. Yes. तो उसके बॉस का बाप खुश है ना, तो बोलता भाई तू जितने मर्जी पैसे लेने ले ले मुझसे, मेरे बॉस को ऐसे लगना चाहिए कि मैंने गाड़ी प्रोवाइड करी, उसको मजे आ गए. उसको वो ये नहीं देखता फैब कार है क्या, कहता कि एडमिन वाली दी. तो आप सोच रहे हो, समझ रहे हो क्या हो रहा है? उसका जो पेन पॉइंट है वो ठीक करके छापा है इसने. Right. Also, one more thing I've done, I think is really powerful, is I've empowered my NBD CRR guys. Meaning earlier सब मैं जाता था flights में उड़ के to meet clients. Now I've started making them fly. So when they fly, they feel really empowered. They feel really confident. They dress up well, and they start selling even in airplanes. I got Surya Kumar Yadav's wife's business from an airplane because my CRR ended up talking to her for an autograph, and he got her business. Very nice, very nice, very nice. Excellent. So empowering your people really, really helps. Good. शॉफर ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा काम किया होगा मेहुल भाई. हाँ, ट्रेनिंग तो वो तो that's part of the operation. Really good. Excellent. So thank you so much, Mehul. I think today was. Thank you, sir. Thanks a lot.
Thank you so much for coming down here, and that too, as usual, on short notice. Can I add something? Hanji, bolo. Hi, Sumit. Hi, Mehul. So, sir, I did BMP in 2019, and I think ASP was introduced that point of time. So we were so busy absorbing BMP कि उस time ASP हुआ नहीं. Then I ended up chatting with Mehul, and then he was like, "भाई rocket लग गए हैं ASP के बाद," and that's how I landed up here. And sir, I have used his services in terms of our personal use also. Trust me, sir, anything better than Avis, Hertz, the companies of the world, the experience is much better than that. And sir, हम सब कोर्स तो कर लेते हैं BMP भी और ASP भी, but जिस तरीके से implementation और execution होती है ना sir, that is what matters. And Mehul has actually done it really, really well. Very Thank you so much. इसकी गाड़ियों का तो मैं टेस्टिमोनियल देता हूँ. मैं गाड़ी और मैं गाड़ी मांगता हूँ मेहुल से, मतलब ऐसे रैंडम उड़ते हुए, मेहुल गाड़ी भेज दे 15 मिनट में, मैं यहाँ हूं. एंड आई एम सेइंग पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी शहर में बैठा हूं, किसी भी शहर में उसको फोन करता हूं, मैं कहता हूं मेरे को गाड़ी चाहिए अभी, राइट? क्योंकि मैं भी लेट उठता हूं कि यार मैं उनसे आखिरी लास्ट मिनट में मांगता हूं, क्योंकि ये मेरा लास्ट ऑप्शन है. बट मेरे को कहीं भी गाड़ी चाहिए, मेरी मॉम को गाड़ी चाहिए, किसी को भी गाड़ी चाहिए ना पैन इंडिया में, कि अभी मेरे को गाड़ी चाहिए कि मेरी मॉम को यहां से उठा के वहां ले जाना है या कुछ करना है, मेरी मॉम कहीं ट्रैवल कर रही है या मेरे फैमिली में कोई ट्रैवल कर रहा है, मैं सुन एक गाड़ी भेज दे, अगले 15 मिनट में हो जानी चाहिए. वो कहता मतलब कोई बोलने की बात नहीं है. मेरे को बॉम्बे में फोन करके, मुझे वापस फोन करके, बॉम्बे में था एंड मैंने कहा गाड़ी भेज दे. इसका वापस फोन आया थोड़ी देर बाद, सर गाड़ी में ना थोड़ा टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, चलेगा क्या? मैंने कहा चलेगा 15 से 20. मैंने कहा उबर में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तू मेरे को BMW भेज रहा है. 10 मिनट में गाड़ी भेजा, बंदा एकदम चकाचक, ड्राइवर वाइट में शर्ट, और सारा दिन मेरे साथ. और क्या मतलब रॉकेट ड्राइवर उसने क्या सेवा करी, क्या बढ़िया तरीके से, क्या वेल स्पोकन. एक बार मना नहीं किया मैंने. मतलब बॉम्बे में मेरे को कहीं उतरना था, शॉपिंग के लिए कुछ करना था, उसने बोला सर यहाँ अभी गाड़ी यहीं पर उतारता हूँ, यही होऊंगा, 2 मिनट में वापस फोन कर लेना, मैं यहीं पहुंच जाऊंगा. What level of service, mind blowing. I was really, मतलब you really amazed. ये मतलब वैसा वाला होता है जैसे अपने घर वाला ड्राइवर होता है, बिल्कुल घर वाले ड्राइवर वाली फीलिंग देता है इसका बंदा. मतलब जब जो गाड़ी देखो, मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं अपने आप चला के ले जाऊंगा, यहाँ पहुंचा दे. कहता अभी ये लो, 20 मिनट में गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी, ड्राइवर आपके पास छोड़ जाएगा, उसके बाद आप पकड़ लो, उसके बाद जो करना करो. सो माइंड ब्लोइंग सर्विस एंड पैन इंडिया. इसके पास इसने भी बताया नहीं इसका पिच पूरा, इसने अपनी पिच अंडर प्ले कर ली. इसकी पिच ये है कि आप इस देश में कहीं भी मुझसे गाड़ी मांगो, किसी भी शहर में, मैं 15 मिनट में इस देश में किसी भी शहर में आपको गाड़ी पहुंचा दूंगा. यस मेहुल? यस एब्सोल्युटली. ये सब भूल गया तू? नहीं, नाइस. So no, because I know him. He's pitching from before. No, मेरे को इसकी पहले भी करवा चुका हूँ. So his pitch was, in this country, any city in this country, आपका वाला बंदा कभी भी फोन कर सकता है और बोल सकता है इस मेरठ में, मथुरा में, तू मेरे को अहमदनगर में अभी गाड़ी चाहिए 15 मिनट में. कहता अभी 15 मिनट में किसी भी शहर में कहीं भी लोकेशन दे दो, मैं 15 मिनट में गाड़ी पहुंचाता हूँ. So this came from the client only ना. मैं क्लाइंट से पूछा था क्यों लब ले रहे हो, तो वो ये बोला कि भाई तू मेरे को कहीं पे भी गाड़ी दे देता है, कभी भी दे देता है, और शॉर्ट नोटिस पे दे देता है, तो मैं उठा लिया इसको. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मेहुल इज दी ऑल्टरनेटिव, उबर्स ऑल्टरनेटिव टू हायर्ड कार्स. कि 15 मिनट में भारत देश में किसी भी शहर में गाड़ी पहुंच जाएगी, और रिलायबल ड्राइवर, रिलायबल गाड़ी. So that is what he plays on. I mean, today he's not talking about it, but really amazing work that he's done. So I just end on this note, one small example. बॉम्बे एयरपोर्ट के बगल में ताज सेंटा क्रूज है, 200-300 मीटर का वॉक है. Clients of mine who stay there are offered free airport transfer from the hotel to the airport. By the hotel. By the hotel. Even then, those clients are hiring a car from me, paying me 1,200 rupees to travel 300 meters.
आप कह रहे हो होटल से पिक एंड ड्रॉप है मगर वो फ्री होटल से फ्री है. Now why is he doing this? Because what if the hotel call is late by 5 minutes? What अगर last minute में शायद ना दें? So that trust, that confidence is massive with me, which is why I'm able to sell higher. Very nice, Ji. Thank you so much, Mehul. Really nice. Thank you. Thanks for the opportunity again. Ladies and gentlemen, can we all unmute? And if it was inspiring, can we thank him all? Thank you, Mehul. Thank you, Mehul. Thank you. Thank you. Please, it was a wonderful sharing. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mehul bhai, thank you. Because of you, I have joined ASP. Thanks, Kunal bhai. Thank you. Very Srini nice. sir, Srini bhi hai. Srini is also a friend of mine. He's also on the course. Usko bolte rehta hu CRM लगा. I think now he's saying मेरे पास जगह ही नहीं office में. I think he's expanding his office now. Yeah. Yes, Mehul. Good to see you. Very nice. अब कुछ काम कर लो, कुछ तो इंस्पायर हो जाओ, मुझसे नहीं तो मेहुल से. Yes, sir. चलो, good. Thank you so much. Thanks, Mehul. Thanks for being here. And bye-bye.